वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नीलम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर की मार्किंग और ब्लूप्रिंट की फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। चिल्ड्रन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए, अब सबसे पहले जानते हैं पेपर की मार्किंग की। पेपर में 3 सेक्शंस हैं चिल्ड्रन। Section A is reading section. Section B is grammar and creative writing skill section. आपके सेक्शन बी में दो पार्ट्स हैं, ग्रामर और राइटिंग स्किल। सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का है जिसमें आपके 10 मार्क्स के 2 पैसेजेस हैं। सेक्शन बी इज ऑफ 20 मार्क्स, 10 मार्क्स फॉर ग्रामर एंड 10 मार्क्स फॉर राइटिंग स्किल्स। इन सेक्शन सी चिल्ड्रन, दैट इज लिटरेचर टेक्स्ट बुक, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। चलिए, नाउ we talk about section A. First of all, reading skills section. You will be getting 2 comprehension passages, children. Question number 1 and 2. One unseen discursive passage of 400 to 450 words. And second unseen case-based passage that is of 200 and 250 words. Children, questions will be based on fill-ups, vocabulary, MCQs and short answer questions. Now we come to section B of the paper. First of all, we see question number 3, grammar questions. You have to attempt any 10 out of 12 given questions. And the syllabus for grammar is determiners, tenses, modals, subject-verb agreement or subject-verb concord, and reported speech. This is of 10 marks. And now section B of the paper, that is creative writing skills. Children, you will get 2 questions in this part. Question number 4, it is a formal letter. Any type of formal letter, children, that is complaint letter, placing order. I have already, children, made videos for you people. Please go and check this. I will give you the link of those videos in the description box also. Okay, formal letter, word limit is 100 to 120 words. You have to do 1 question out of 2 given. And see the marking of this. This is of 5 marks, content 2 marks, organization of ideas 2, and accuracy of spelling and grammar 1 mark. Total 5. Now we come to question number 5. It is an analytical paragraph based on given map, chart, graph, and cues. Word limit is same, 100 to 120 words. You have to do 1 out of 2 given questions. Marking 5 marks question. It is same children, content 2, organization of ideas 2, accuracy of spelling and grammar 1 mark. अब हम आते हैं सेक्शन सी ऑफ द पेपर में। इसमें चिल्ड्रन आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 क्वेश्चंस करने हैं और एंड क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स, दैट इज फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. There will be extracts, multiple choice questions, objective type questions, short answer type questions and long answer type questions. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें चिल्ड्रन आपको एक्सट्रैक्ट मिलेंगे फ्रॉम ड्रामा एंड प्रोज सेक्शन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का है। देन क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको एक्सट्रैक्ट मिलेंगे पोएट्री सेक्शन से। ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ 1 ईच, आपका ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो और बाकी के 3 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस will be like MCQs, very short answer type question, maybe 1 word or 1 sentence, okay, to assess inference, interpretation, analysis, vocabulary and evaluation. अब देखिए चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 8, इट इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर 40 to 50 वर्ड्स में लिखने हैं और आपको 5 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. And you will be getting questions from prose as well as poetry section from your book First Flight. Now question number 9. It is also a short answer type question. अब इसमें से लेकिन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से और सेम मार्किंग इज 40 to 50 वर्ड्स एंड वर्ड लिमिट इज 40 to 50 वर्ड्स
और इसमें आपको लेकिन 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 नहीं करने हैं, 2 करने हैं, और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 marks and this question is of total 6 marks, children. Now children, question number 10 and 11. These two are long answer type questions and each question carries 6 marks. इसमें आपकी वर्ड लिमिट 100 to 120 है. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में से है, और क्वेश्चन नंबर 11 इज फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एंड क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन थीम, सिचुएशन, प्लॉट involving interpretation, extrapolation beyond the text, and inference or character sketch. Children, extrapolation and inference means your understanding how do you reach to a conclusion after reading the story or reading the chapter or the poem, and your imagination and your prediction about a particular incident or about a particular character. This was all about the theory paper. अब हम आते हैं इंटरनल असेसमेंट पर. वो कैसे होता है और कितने मार्क्स का होता है? इंटरनल असेसमेंट चिल्ड्रन आपका 20 मार्क्स का होता है, और उसमें सबसे पहले आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं, जो आपका पीरियोडिक असेसमेंट होता है स्कूल में, उसके 3 में से बेस्ट 2 के मार्क्स लगते हैं, एंड द टीचर्स कन्वर्ट दोज मार्क्स इनटू 5. वो 5 में से मार्क्स निकालते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं 5 में से. उसके बाद आता है आपका मल्टीपल असेसमेंट, जिसे एमए बोलते हैं. पीए पीरियोडिक असेसमेंट, एमए इज मल्टीपल असेसमेंट्स. उसमें जो आपकी क्विज है, प्रोजेक्ट है, ग्रुप डिस्कशंस हैं, आपकी नोटबुक है, आप कैसे मेंटेन करते हैं, या आपके स्कूल में अगर रजिस्टर लगा है तो वो है, उसके आपके चिल्ड्रन 5 में से नंबर लगते हैं. सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, टीचर की मर्जी है वो आपको किस चीज़ के नंबर देते हैं. उसके बाद है आपका पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ योर वर्क विद पिक्चर्स. आपको पिक्चर पेस्ट करके आपका जो भी काम है वो आप अपना प्रेजेंट करते हैं टीचर को. दैट कैरीज 5 मार्क्स. उसके बाद है चिल्ड्रन सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज. इसमें चिल्ड्रन आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल भी हो सकता है. कोई भी टीचर एक्टिविटी आपको दे सकते हैं. दैट कैरीज 5 मार्क्स. तो टोटल हो गया हमारा 20. 80 मार्क्स थियरी पेपर, 20 मार्क्स इंटरनल. टोटल इज 100. आई होप चिल्ड्रन की पेपर की मार्किंग और उसका ब्लूप्रिंट और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपको क्लियर है. अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे से नंबर लाइए. ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन फॉर योर forthcoming board exams. Stay tuned for more videos on different topics. इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.